Within these walls, some of the world's finest health products are researched, developed, and manufactured. For more than 30 years, USANA Health Sciences has been the world leader in cellular nutrition, driven by a relentless vision of creating the healthiest family on Earth. One man's unwavering dedication to science paved the way for a new era of health. Standing on the shoulders of giants before him, he devoted a lifetime to unlocking the secrets of cellular health, creating a legacy that continues to inspire and empower millions all over the world. Myron Wentz began his studies in the pre-med program at North Central in Illinois, where he cultivated his desire to create the tools and solutions for medicine, rather than solely practice as a medical doctor. He took a job for the state health department as a microbiologist studying immunology and infectious diseases. His desire to master the skills of his job led him to the University of Utah, where he received his doctorate in microbiology and immunology. I realized early on that in the laboratory we were handicapped with the unavailability of test systems to identify viral infections. And it was after 3 years of dealing and being frustrated with this that I decided to try my hand at it. Help supplement his own health. And when his friend brought in those supplements, he looked at the label and he said, I can't believe this is what they're feeding to humans. If we fed these same nutrients to the cells in our laboratory, we'd be out of business. In 1992, he sold Gull Labs to found USANA Health Sciences, now fully dedicated to solving the problems of cellular nutrition by transitioning his efforts from diagnostics to maintaining health. Back in the early 90s, I think the supplement market was dominated by the supermarket brands. And Dr. Wentz's vision was to develop the highest quality, science-based nutritional products possible that would move the needle on the supplement industry. Despite USANA's global success in providing the best cellular nutrition products, he felt a growing restlessness. While the company had made remarkable strides in maintaining the health of millions of people, he knew there was more to be done in the war against degenerative disease. Driven by his unwavering commitment to advancing health, he decided it was time to channel his knowledge and expertise into the realm of treatment. In the year 2000, he founded the Sanoviv Medical Institute, a holistic healing and wellness facility that would provide the most advanced treatments available. He wanted to create an atmosphere almost like a laboratory where there were no toxins, where people could come who needed to have their health improved and could receive through a natural way the best opportunity to maintain and or regain their health. And it's one of the premier facilities in the world. Just as Gull Labs and USANA were ahead of the curve when they were founded, he was determined Sanoviv would go a step further. The Institute became a pioneer in using state-of-the-art diagnostic and therapeutic methods to treat patients with complex health conditions. Dr. Wentz's vision for health. Good evening, everyone. How are you all? आप प्लीज जल्दी जल्दी सबको मैसेज करिए टीम मेंबर्स को सो एवरीबॉडी जॉइंस. आज हम वेट मैनेजमेंट पे बात करेंगे बिकॉज अभी वेट मैनेजमेंट पे ही हमारा एक 2 वीक वेट लॉस चैलेंज चल रहा है. आई थिंक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है उस ग्रुप को. सो आई थॉट व्हाई नॉट मैं आज वेट को लेके ही बात करूं. सो गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, गुड इवनिंग. सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन करने वाले हैं जो कि है वेट लॉस पे. और मैं जो मुझे जानते हैं ऑफकोर्स, जो आज जो नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है यूसाना, सो उसके लिए उन लोग के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो मैं नेहा आहूजा हूँ एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट. आई एम अ डाइटिशियन.
एंड आई हैव मुझे 11 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में काम करते हुए। मैंने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, बहुत सारी फूड कंपनीज में भी काम किया है। लास्ट कंपनी मेरी जो थी, वहाँ पे मैंने रिसर्च सेंटर में भी काम किया है। मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में, रिसर्च किया है। और मैंने अपना मास्टर्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में, जो कि ICAR के अंडर आता है, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उनसे ही अफिलिएटेड है। और मैंने बेसिकली बहुत टाइम स्पेंड किया है। मैं बहुत पैशनेट हूँ साइंस को लेके। सो मेरा एसोसिएशन ज़्यादातर न्यूट्रिशन, साइंस, मेडिकल बैकग्राउंड ही रहा है। मेडिकल जैसे हॉस्पिटल से ही टच रहा है, क्लिनिक से, डॉक्टर से। एंड मेरा पैशन है साइंस, राइट? और यूसाना इज़ अ कंपनी विच इज़ ऑलवेज ऑलवेज हैव बीन साइंस बैक्ड। उनका जो बेस है वो ही साइंस है, बिकॉज डॉक्टर मायरन वेंस started this company, who is a microbiologist, immunologist, साइंटिस्ट हैं वो। और इतनी रिसर्च के बाद जो है यूसाना उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स जो है यूसाना के सप्लीमेंट्स स्टार्ट किए। एंड दीज आर ऑल साइंस बैक्ड, इतनी रिसर्च के बाद। और मेन जो मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूसाना का, दैट इज सेल्युलर न्यूट्रिशन, सेल हेल्थ, सेल के लेवल तक जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और अगर हमारे सेल्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो हम भी हेल्दी हैं, राइट? आई विल स्टार्ट माई सेशन इन अ मिनट। आप प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने टीम मेंबर्स को मैसेज कीजिए, बुलाइए। एंड लेट्स सी कि वेट लॉस जो है, बहुत सारे मिथ्स भी हैं उसके साथ, कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, कंप्लीटली छोड़ देना है। बहुत सारी फैट डाइट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। जैसे कि आप बिल्कुल सीरियल छोड़ दें, या फिर आप कीटो डाइट पे चले जाएं। ये सारे फैट डाइट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म आपको कभी भी फॉलो नहीं करने चाहिए। एंड एक्सट्रीम डाइट्स आपको रिजल्ट तो देते हैं वेट लॉस पे, बट अगेन दे इम्पैक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, राइट? और जब भी आप नॉर्मल डाइट पे वापस आते हैं, तो आपका इमिजिएट वेट गेन भी होता है। सो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड, जितना भी मैंने पढ़ाई की है, जो भी हमारे ICMR के रिकमेंडेशंस हैं, WHO के रिकमेंडेशंस हैं, इट्स ऑलवेज ग्रेजुअल वेट लॉस पे, हेल्दी वेट लॉस पे हमें फोकस करना चाहिए, राइट? सो हेल्दी वेट लॉस क्या होता है कि आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं लाना है। आपको एक्स्ट्रा फैट हटाना है ग्रेजुअली, अपने स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंड्योरेंस को बढ़ाना है। ना कि आपको सिर्फ ओवरऑल पतला दिखना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ पे काम करना चाहिए, कि आपका जो बॉडी वेट है, अगर वो नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो आप बहुत सारी डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, इट शुड बी a good health, a good strong body, right? सो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट कर रही हूँ। प्लीज़ आप जल्दी जल्दी जो है अपने मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को प्लीज़ बुलाइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, होप माई स्क्रीन इज विजिबल। आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? और प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ चैट बॉक्स पे टाइप करिए, एंड आई विल टेक इट अप एट द एंड ऑफ द सेशन। सो वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, नरिश योर बॉडी एंड एलिवेट योर हेल्थ। सो वेट मैनेजमेंट डजंट मीन कि हमें पतला होना है, पतला दिखना है सिर्फ, बट so your focus should be on nourishing your body, healthy body, elevating your strength, your stamina, your endurance, your health, right? ओके, सो ओबेसिटी क्या है, हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज ओबेसिटी। एक्सेसिव बॉडी फैट, हमारी बॉडी में जब एक्सेसिव, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर बॉडी फैट होता है, और वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगता है, तब हम उसको ओबेसिटी कहते हैं, या ओवरवेट कहते हैं, राइट? मेजरमेंट क्या है? एक्सेसिव बॉडी फैट जो है हमारा हेल्थ को, जो मेजरमेंट्स है बेसिकली, आप
बहुत सारे वेज से आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपका जो फैट है बॉडी में वो कैसे आप मेजर कर सकते हैं। एक तो बीएमआई होता है विच इज बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी मैं आगे बात करूंगी। आपका बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। बहुत सारे वेज हैं कैलकुलेट करने के, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वेट गेन क्यों करते हैं। जब हम अपनी कैलोरीज का इंटेक जो है हमारी कैलोरीज के आउटपुट से ज़्यादा होता है, मतलब हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उसका आउटपुट अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक उससे कम होगा तो हमारी बॉडी में फैट अक्यूमुलेट होने लगेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये जो आइडियल सिचुएशन मैंने आपको बताया ना, ग्रेजुअल वेट लॉस या हेल्दी वेट लॉस क्या होता है कि अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट होती है 2000 किलो कैलोरीज, राइट। अगर आप उसमें से 500 किलो कैलोरीज कम इंटेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1500 कर रहे हैं, और एक हफ्ते तक अगर आपने ऐसे किया तो आपको अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ बॉडी फैट आप लूज कर सकते हैं। सो डाइट बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल इतना तो आप 1500 किलो कैलोरीज ले रहे हैं, आपने 500 किलो कैलोरीज कम करी इनटेक पे, और आपने 500 किलो कैलोरीज 400 500 किलो कैलोरीज अगर आपने और एक्स्ट्रा बर्न करी बिकॉज ऑफ योर एक्सरसाइज, तब आप एक वीक में 1 kg भी बॉडी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं विच इज आइडियल। इससे ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस जो है वो नहीं होना चाहिए बिकॉज वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सो कैलोरीज इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या होता है, इन जो है आप कैलोरीज कैसे आप ले रहे हैं अपनी बॉडी में, कहाँ से आता है, फूड से आता है, आप जो बेवरेजेस या जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, और आपकी एपेटाइट से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी डाइट चॉइसेस से। फॉर एग्जांपल हम जब बाहर जाते हैं, हम ज़्यादा जब बाहर खाने लगते हैं बाहर का, या पोर्शंस बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पेस्ट्री पसंद है, राइट। अगर हम पूरी पेस्ट्री खाएंगे तो हम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, बट इफ़ यू कंट्रोल द पोर्शन, अगर आप हाफ पेस्ट्री ले रहे हैं या थोड़ी सी पेस्ट्री ले रहे हैं तो आप कैलोरीज का इंटेक कम कर रहे हैं एंड यू इंजॉय योर फूड ऑल्सो, राइट। सो वी शुड फोकस कि अगर हमको फेवरेट फूड हमें खाना भी है वीक में 1 बार या 2 बार, तो हम उसका पोर्शन रिस्ट्रिक्ट करें और ओवरऑल डाइट को बैलेंस करने की कोशिश करें। कैलोरीज आउट कैसे होती हैं, बहुत तरीके से होती है। हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट पे, मतलब हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, राइट। एनर्जी कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रही है हमारी बॉडी में, हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारे सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। हम जब रेस्ट होते हैं ना तब भी हमारी बॉडी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है ताकि हमारा ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, राइट। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो डेली हमारे मूवमेंट्स होते हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत कैलोरीज लॉस लॉस होती हैं। और जो एनर्जी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लग रही है उस वो भी बॉडी हमारी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो एनर्जी यूज कर रही है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर हैं हमारे, राइट। वेट चेंज कब होता है, जब हमारा इनटेक आउटपुट से ज्यादा होता है तो वेट गेन हो जाता है। अगर हमारा इनटेक ऑफ कैलोरीज अगर आउटपुट से कम है तो वेट लॉस होता है। अब जैसे ये मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे तरीके हैं ओबेसिटी को मेजर करने के लिए। पहला है बॉडी मास इंडेक्स, राइट। इट्स अ मेजर ऑफ बॉडी फैट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, राइट। सो अगर देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि हमारा जो बीएमआई है वो 18.5 से यू नो 24.9 तक नॉर्मल है। बट एशियन इंडियंस जो एशिया में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम कम हाइट पे ज्यादा वेट ज्यादा फैट अक्यूमुलेट करने की हमारी टेंडेंसी होती है एशियन इंडियंस की। सो इसीलिए हमारा जो नॉर्मल बीएमआई रेंज है वो 18.5 से 23 है, या 22.9 आप कह लें, 23।
तो आइडियली यही होना चाहिए, बट इवन इफ इट्स, अगर आप 25 तक भी उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तब भी ठीक है, राइट। सो आइडियली आपको 23 तक होना चाहिए। अब अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये सारे जो है क्राइटेरिया दिए हैं कि ओवरवेट क्या होता है, ओबेसिटी अगर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, मतलब बहुत एक्सेसिव केसेस हो गए। सो ट्राई टू मेंटेन योर बीएमआई विद इन 18.5 टू मैक्सिमम 25। अगर 23 तक है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इवन इफ इट्स 24 25 तब भी ठीक है। बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करना, आप जल्दी जल्दी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप प्लीज अपना बीएमआई खुद कैलकुलेट करिए और आप चैट बॉक्स में डालिए, राइट। आप अपने हाइट को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस कैलकुलेशन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने गूगल में भी अपने फोन पे टाइप कर सकते हैं, टू कन्वर्ट योर हाइट इन फीट इनटू मीटर्स, राइट। आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो हाइट है वो 5.4 फीट है, तो मैंने उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर्स में आ जाएगी। या आप सिंपल गूगल पे जा सकते हैं, आप उस पे लिख सकते हैं 5.4 फीट इंटू मीटर्स, तो भी आपका आ जाएगा। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, प्लीज आप पहले ये कैलकुलेट करें, अपनी हाइट को मीटर्स में कन्वर्ट करें। अगर मीटर में जैसे आ गया 1.65, तो उसको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। सेकंड स्टेप क्या है, 1.65 इंटू 1.65, राइट, विच कम्स टू 2.72। सो फर्स्ट स्टेप है आपका फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना, और मीटर्स को जो नंबर आता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, राइट। अब बीएमआई लास्ट स्टेप है, हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। सो आपका जो करंट वेट है, फॉर एग्जांपल 65 केजीज अगर है, तो उसको हमें 2.72 से डिवाइड करना है, जो हमारा मल्टीप्लाई करके नंबर निकला था। तो 3 स्टेप्स हैं, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। ओके, वाओ, देवराज जी का 19.9, परफेक्ट। देवराज जी आपका बीएमआई बहुत ही अच्छा है। बाकी सब भी प्लीज कैलकुलेट करिए, मैं वेट कर रही हूँ। यू कैन कैलकुलेट योर बीएमआई योर सेल्फ ऑल्सो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है तो यू डोंट हैव टू वर्क आउट, या आपको अपनी डाइट का ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू मेंटेन दिस। मेंटेन करने के लिए आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज। चंद्रशेखर जी है 28, विच इज ऑन दी हायर साइड, आपको इसको रिड्यूस करना है सर। ट्राई टू रिड्यूस इट, एटलीस्ट फर्स्ट अपना टारगेट रखिए कि मैं 25 तक इसको करूंगा, एंड देन रिड्यूस इट टू 23। सो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, बिकॉज ये जो ओबेसिटी है या ओवरवेट है ना, ये आगे चल के बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। राजेश जी का है 21, विच इज परफेक्ट, विच इज परफेक्ट। होप सबको, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप कभी फील्ड में जाते हैं तो आप ये जो है आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि आप अपना बीएमआई चेक करिए, अगर ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट, राइट। 30 तक अगर किसी का बीएमआई आ रहा है, दैट्स वेरी बैड, आपको बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट, आइडियली। और जिसका है सो प्लीज एक्ट नाउ। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तुर्जु का है 22.79, विच इज अमेजिंग, विच इज वेरी वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस दास गुप्ता जी। ओके, सो अदर वेज, एक तो बीएमआई होता है, राइट। कई लोगों को लगता है कि बीएमआई जो है वो ठीक ही आ रहा है मेरा, लेकिन कई लोगों का जो फैट अक्यूमुलेशन होता है वो वेस्ट के साइड पे होता है। सो ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका वेस्ट टू हिप रेशियो भी ठीक आना चाहिए। ये आप जो हमारा जो मेजरिंग टेप होता है उससे आप मेजर कर सकते हैं। अगर जो है वेस्ट सरकमफेरेंस जो है 102 सेंटीमीटर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेन के केस में,
और 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा विमेन के केस में नहीं होना चाहिए। और जो वेस्ट टू हिप रेशियो है वो आपका बेसिकली मेन का, मतलब अगर आपने वेस्ट मेजर किया और हिप रेशियो मतलब वेस्ट जितना आपका आया, फॉर एग्जांपल आपका आया 80 सेंटीमीटर और आपका हिप आया अराउंड 90 सेंटीमीटर्स, तो वेस्ट को हिप से डिवाइड करेंगे और तब आपका ये रेशियो आएगा, राइट। सो रेशियो जो है, अगर ज्यादा रेशियो है 1 से फॉर मेन, तो रिस्क, हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है। सो 1 या 1 से कम ही होना चाहिए, और विमेन के केस में 0.85 या 0.85 से कम ही हो, राइट। सो ये भी मेजर करना बहुत जरूरी है। ओके, ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है? अगर आप देखेंगे ग्लोबली 43% अडल्ट ओवरवेट हैं और 16% ओबीज हैं। सो ओवरवेट क्या होता है? अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 30 तक है और 30 से ऊपर जो है वो ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी जो रेट्स हैं वो 1990 से अगर आप अभी देखेंगे तो वो डबल हो चुके हैं। 37 मिलियन चिल्ड्रन भी अंडर 5 ओवरवेट हैं। सो आजकल जो है, पहले कहते थे कि चबी बच्चा है तो अच्छा है, हेल्दी है, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चों में भी फैट अक्यूमुलेट अगर होता है तो अडल्ट में उनके लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज, अगर उनका वेट नॉर्मल रेंज में आ रहा है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा चबी है, गाल मोटे मोटे हैं तभी वो अच्छा है, राइट। सो बच्चों के लेवल से ही आपको उनका वेट जो है नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे बच्चे भी हैं, जब भी मुझे लगता है कि वेट अगर बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है उनको, तो मैं उनका तुरंत ही आई स्टार्ट, वैसे तो मेरे बच्चे दोनों ही स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं, बट स्टिल कई बार होता है कि स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, जब बच्चों को अंदर ही रहना पड़ा था तो बच्चों का जनरली खा रहे थे, वेट गेन हो रहा था। सो आई ट्राइड कि थोड़ा बहुत जो भी वेट गेन हुआ है बच्चों में, उनको पुश किया, उनकी डाइट में मॉडिफाई किया, उनको स्वीट्स कम रखे, आप घर पे स्टॉक ही मत करिए। घर पे अगर आप बहुत ज़्यादा चिप्स, फ्राइड स्नैक्स, बिस्किट्स, क्रीम बिस्किट्स, ये सब अगर आप स्टॉक करेंगे तो बच्चे खाएंगे, राइट। आप अपने घर में बहुत हेल्दी स्नैक्स स्टॉक कर सकते हैं, जैसे मुरमुरा है, रोस्टेड चना, पीनट्स, या फिर बेक्ड स्नैक्स होते हैं, आप इडली बना के दीजिए, बॉइल्ड एग दे दीजिए, राइट। आप बेसन का चीला बना के दे सकते हैं, आप स्प्राउट्स दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आप मिल्क शेक, नॉर्मल मिल्क जो है आप दीजिए, दही दीजिए, स्मूदीज बना के दे सकते हैं बच्चों को, या खुद भी ले सकते हैं, राइट। ओके, ओके। इंडिया में अगर हम बात करें तो रेट्स जो है ट्रिपल हो चुके हैं रिसेंटली। अडल्ट ओबेसिटी में 23% मैन, 24% विमेन ओबीज हैं। ओबेसिटी तो और भी ज्यादा होगी, राइट। मतलब आपका ओवरवेट लोग तो और भी ज्यादा होंगे। ये ओबेसिटी के रेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया का, ये डेटा है। ये रिसेंटली जो है, ये रीसेंट डेटा है फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक एनएफएचएस, जो गवर्नमेंट डेटा होते हैं या कुछ स्टडीज होते हैं, रिसर्चेस होते हैं, उनके बेसिस पे है ये सारा। जो फाइंडिंग्स हैं इन सारी रिसर्चेस की, वो ये शो करते हैं कि 5 to 6 आउट ऑफ 10 विमेन जो है वो अब्डोमिनली ओबीज है, मतलब आपके अब्डोमेन के अराउंड फैट अक्यूमुलेशन है, दैट इज रियली रियली बैड। अर्बन जो है, ऑफ कोर्स अर्बन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जंक फूड का, बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हैं, तो ओबेसिटी जो है अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी 2.1% से 3.4% इंक्रीज हो चुकी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ये एक आईसीएमआर की स्टडी हुई थी जहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्रेवलेंस है ओबेसिटी का इंडिया में ऑल ओवर, वो 11.8 से 31.3%, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है प्रेवलेंस, राइट। ओके, सो कॉजेज क्या है ओबेसिटी की? फर्स्ट ऑफ कोर्स होता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, बाहर का इंटेक ज़्यादा है, पोर्शन साइजेस आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या शुगर डाइट, शुगरी डाइट्स, आप बहुत शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, बाहर का जो ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं वो आप बहुत ले रहे हैं, या सिडेंट्री, मतलब
हमारा ज़्यादातर अगर आप देखेंगे आजकल लोगों की डेस्क जॉब्स हैं, राइट, बहुत सिडेंट्री जॉब्स हैं, लाइफस्टाइल्स हैं, तो इसीलिए हमको एटलीस्ट 1 आवर एक्सरसाइज 3 to 5 टाइम्स इन अ वीक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो चुकी हैं मीनोपॉज की वजह से भी, बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करते हैं, जिस वजह से फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ जाता है। अदर क्या है, जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स जेनेटिकली आता है, स्ट्रेस, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, इमोशनल ईटिंग, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, मूड खराब होता है, तो हम ज़्यादा हमें लगता है कि हम खाएंगे अच्छा खाना तभी हम फील बेटर करेंगे, बट दैट्स नॉट गुड। ट्राई टू आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है, आप अपनी किसी एक्टिविटी से जो आपको अच्छा लग रहा है उन चीज़ों से आप बदलने की कोशिश करें। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड की या पीसीओएस की मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे जैसे थायराइड है या पीसीओएस है तो उसमें भी वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्यों मैं इतना ओबेसिटी और ओवरवेट पे फोकस कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट इन द बॉडी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है लेटर ऑन, बिकॉज क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तो उन इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक लेयर ऑफ फैट आ जाती है, जिस वजह से इंसुलिन बॉडी रिसीव ही नहीं कर पा रही है। तो ऑफ कोर्स इंसुलिन है लेकिन उसका एक्शन नहीं है, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ओबेसिटी। हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। स्लीप एपनिया मतलब आपके एयरवेज के आसपास जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, तो फैट जो है आपके एयरवेज जहाँ से आप सांस ले रहे हैं उनके अक्रॉस भी जमने लगता है, कई लोगों का यहाँ पे बहुत फैट जम जाता है, जिस वजह से आपका जो पैसेज है, एयर पैसेज है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, और उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, राइट। फैटी लिवर हो जाता है, ऑस्टियोराइट, ऑफ कोर्स अगर आप ओवरवेट होंगे या ज़्यादा फैट होगा तो आपके जॉइंट्स पे भी उतना ही लोड आएगा। अगर वो ज़्यादा लोड होगा, उसमें भी आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट या बोन इश्यूज भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो डाइटरी अप्रोच क्या लेनी चाहिए, एनर्जी डेफिशिट मतलब ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट्स जो है एक नॉर्मल इंसान की 2000 होती हैं, लेकिन जब वेट बढ़ता है तो हमें एनर्जी डेफिशिट, एनर्जी कम, कैलोरीज का कंजम्पशन कम करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट डेंस मतलब आप अपनी जो मील्स लें वो कैलोरी डेंस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए, मतलब आपके विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, गुड फैट्स, ये सारे आपके डाइट में ज़्यादा होने चाहिए। फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, जहाँ पे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन मतलब अगर आप कोई भी प्रोटीन, जैसे कि आप रेड मीट होता है, रेड मीट में फैट ज़्यादा होता है, अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं तो वो लीन प्रोटीन है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट कम है। अगर आप लो फैट पनीर खा रहे हैं या स्प्राउट्स खा रहे हैं तो ये सारे लीन प्रोटीन है जिसमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। होल ग्रेन्स मतलब अगर आप बाजार जाते हैं, आप आटा लेते हैं, राइट, हमें लगता है कि वो आटा है, होल व्हीट है, बट वो कई बार होल व्हीट नहीं होता। व्हीट मतलब, होल व्हीट मतलब जिस ग्रेन की तीनों लेयर्स इंटैक्ट हो, मतलब ब्रांड भी होना चाहिए, एंडोस्पर्म भी होना चाहिए। सो ज़्यादातर जो लोग चक्की से पिसवाते हैं आटा, वो इंश्योर करें कि वो पूरा ग्रेन पिस रहा है, उसको छन के आपको आटा नहीं मिल रहा है, तीनों लेयर्स इंटैक्ट हैं, तो उसी से आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, फाइबर भी मिलता है। पोषण कंट्रोल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर जो सीरियल्स होते हैं ना, हमारे अनाज, जैसे कि चावल है, रोटी है, दलिया है, सूजी है, या जो आप पोहा वगैरह खाते हैं, इनकी क्वांटिटी आपको थोड़ा सा पोषण कम करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लंच में 2 चपाती खा रहे हैं, ट्राई टू ईट 1 or 1.5, और आप अपने वेजिटेबल्स की कंटेंट, सैलेड, दही, दाल, ये सारी चीज़ें आप अपनी मील में लीजिए, ताकि आपका सीरियल का पोर्शन कम हो,
शुगर आपको, ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि शुगर जो है हम चीनी छोड़ दे दिया है, लेकिन हम हनी खाते हैं, हम गुड़ खाते हैं, हम देसी खांड खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कैलोरीज नहीं दे रहे हैं, आपको उतनी ही कैलोरीज मिल रही हैं। सो ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि हम वेट लॉस पे हैं या हमें डायबिटीज है तो हम चीनी नहीं खा रहे लेकिन जैगरी खा रहे हैं और हनी खा रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर बेटर फॉर्म्स ऑफ शुगर, क्योंकि वो रिफाइंड कम होते हैं लेकिन इक्वल कैलोरीज हैं, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी उतना ही है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको शुगर, हनी, जैगरी, देसी खांड, ये सब आपको रिड्यूस करना है, बंद करना है। आप पोर्शन कंट्रोल करना है। हाईली प्रोसेस फूड्स, और स्पेशली लोग सोचते हैं कि फ्रूट जूस बहुत अच्छा होता है, बट नहीं, फ्रूट जूस में बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज कंटेंट होता है और फाइबर नहीं होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वन मीडियम फ्रूट विच इज़ 80 to 100 grams, नॉट फ्रूट जूसेस। इवन घर पे बने जूसेस आपको नहीं लेने हैं, वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? अच्छा, हेल्दी चॉइसेस, अब इस पे ये आईसीएमआर ने आपको रेकमेंड किया है, ये मैंने वहीं से उठाया है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूट्रिशन है, उन्होंने कहा है कि आप जैसे जो फूड्स हैं, जो हाई कैलोरी फूड्स हैं, आप उनको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? सैलेड से, स्प्राउट से, राइट? डीप फ्राइड स्नैक्स की जगह आप वन हैंडफुल आप नट्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक कटोरी नट्स खाना है, मतलब आप 4 से 5 बादाम, एक वॉलनट, दो दो पीस काजू, आप ये ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइड स्नैक्स। अगर आप फूड बहुत, पेस्ट्रीज, ये सारे इनको रिप्लेस करिए होममेड ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स जो होल ग्रेन से बने हैं, डेट्स से बने हैं, लेकिन इनका भी पोर्शन रिस्ट्रिक्टेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको जितना मर्जी खा सकते हैं, मतलब है आपको हेल्दियर चीज़ों से रिप्लेस करना है, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ों से रिप्लेस करना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल्ड, राइट? शुगरी बेवरेजेस को आप नारियल पानी पीजिए, आप छाछ पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, लेकिन नींबू पानी चीनी से भरा नहीं। ऑफ कोर्स फ्रेश फ्रूट जूसेस को आप होल फ्रूट्स, वन मीडियम फ्रूट से रिप्लेस करें। जैम, सॉसेस, डिप्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट भी बहुत होता है, तो इनको रिप्लेस करिए होममेड जो हमारी ट्रेडिशनल चटनीज हैं, डिप्स जो हम घर पे बनाते हैं, दे आर मच मच हेल्दियर देन दीज सॉसेस। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, आप खाइए, इसको ओकेजनल रखिए, पोर्शन कंट्रोल्ड रखिए, और इसका कंजम्पशन आप ओकेजनल रखिए, कभी कभी रखिए। ये आपको एक ऑप्शंस हैं, जैसे आप कैसे, अब आप कैसे आप अपने पोर्शंस को डिफाइन करेंगे। सीरियल्स मतलब आपके सारे अनाज, रोटी, चावल, आपका दलिया, ब्रेड, ये सारा अनाज है या सीरियल है। इसको जब हमें वेट लॉस करना होता है तो हम इसको 3 to 4 पोर्शंस करना होता है दिन में। अगर जो नॉर्मल है वो 6 to 8 पोर्शन, जो हेल्दी हैं, जो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए 6 to 8 पोर्शंस हैं, लेकिन यही पोर्शन हमको कम करना है। मतलब एक पोर्शन क्या हुआ, एक सीडी होता है ना, एक कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बराबर एक चपाती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने कहा कि मैं एक चपाती खा रहा हूँ तो बहुत बड़ी सारी आपने चपाती खा ली, दैट्स नॉट वन पोर्शन, दैट्स नॉट वन चपाती। सो वन पोर्शन इज इक्वल टू अ सीडी। या फिर आप राइस भी अगर ले रहे हैं तो एक कटोरी राइस लेना है, बहुत ज़्यादा राइस नहीं लेना है। एक स्लाइस ब्रेड एक पोर्शन होती है, मतलब अगर आपने दिन में, दोपहर आपने ब्रेकफास्ट में एक चपाती खाई, लंच में एक चपाती खाई, रात को आपने एक स्लाइस ब्रेड लिया, तो वो 3 पोर्शंस आपने सीरियल्स के खा लिए, राइट? ऐसे आपको मेजर करना है कि जैसे मैंने आज एक सुबह एक रोटी खाई थी, दाल का पराठा खाया था, दैट इज वन पोर्शन, नॉर्मल साइज, नॉट वेरी बिग साइज। दोपहर में मैंने एक बोल राइस लिया था तो वो दूसरा पोर्शन हो गया। शाम को मैंने एक स्लाइस ब्रेड ली थी या सैंडविच लिया था तो वो एक पोर्शन हो गया। सो ऐसे ही आपको ये रिस्ट्रिक्ट करना है। पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स में, इसमें आपको कमी नहीं करनी है। ये आपके 2 से 3 पोर्शन, मतलब आपको जो दाल है या चने हैं, राजमा है, ये सारी चीज़ें आपको 2 से 3 कटोरी जो है दिन में आप लेना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले, दाल के फॉर्म में, राजमा, बॉइल्ड चना, स्प्राउट्स,
या फिर बेसन, राइट। और फ्रूट एक ही पोर्शन लेना है, मतलब 1 पोर्शन इज 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट, विच इज, और ट्राई करें कि अगर बहुत ज्यादा जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनका पोर्शन थोड़ा आप और कम करें, राइट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको 300 ml, मतलब अगर आप 1 ग्लास दूध ले रहे हैं तो उसको लो फैट लीजिए या टोन्ड लीजिए, राइट। और साथ में आप 1 कटोरी दही या पनीर, तो अगर आप ये ले रहे हैं तो इतना आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और एडेड फैट मतलब 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप जो खाना बनाने में ऑयल यूज कर रहे हैं या घी ले रहे हैं या बटर ले रहे हैं, तो दिन में आप कोशिश करें कि वो 3 से 4 चम्मच ही हो। आप घी लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ही लीजिए दिन भर में, 1 to 2 टीस्पून। सॉरी। ओके। सो ये तो हमने बात करी डाइट की, पोर्शंस की, राइट। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके वेट लॉस करने में या वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे बी वाइटामिन्स। आप जब वर्कआउट करते हैं या डेली एक्टिविटीज करते हैं तो आपको फटीग महसूस हो सकता है, राइट। सो बी वाइटामिन्स क्या करते हैं, हमारे फूड से एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जिंक क्या करता है कि एनर्जी और इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। और अगर जिंक की कमी होगी तो आपका फैट लॉस भी होना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही आयरन और मैग्नीशियम जो है वो क्रेविंग्स को, अगर आपको इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ना शुगरी या कार्बोहाइड्रेट फूड्स की क्रेविंग हो रही है। सो अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग होगी, आप ज़्यादा खाओगे, आप वेट गेन होगा। विटामिन डी, कैल्शियम क्या करते हैं, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो। लेप्टिन होता है क्या, वो हमारा एपेटाइट रेगुलेशन हार्मोन होता है, राइट। सो इनकी कमी से भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है। हम कई बार सोच रहे थे कि हम खाना कम खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस तब भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जो आपकी पूरे बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर रही हैं, राइट। जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, राइट। सो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो अगर, तो क्या करेगा बॉडी, कहेगा कि नहीं, मेरे को ना मसल मेंटेनेंस जो है, अब मुझे एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे मसल मेंटेनेंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, क्योंकि मुझे बॉडी को चलाना है ना, पहले तो बॉडी को चलाना है। तो उससे क्या होगा, इन डेफिशिएंसीज की वजह से बॉडी जो है वो शिफ्ट कर जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वो सारी अपनी एनर्जी, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन में लगा देगी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो हमारी बॉडी में मसल लॉस होने लगेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट करने लगेगा। सो डायरेक्टली ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, राइट। सो इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी जो है हमारी बॉडी में वेट लॉस या फैट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स सबको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है। मिनिमम जो है 150 मिनट्स जो है, ये रिकमेंडेशन है WHO की कि आपको मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी वीकली करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक भी करनी चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस बढ़ेगा, राइट। इससे क्या होता है, अगर आपका मसल मास जो है अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, राइट, तो मसल जो है ना हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, राइट, मसल को मेंटेन करेगी, हार्ट हेल्थ को, मूड को इम्पैक्ट करती है एक्सरसाइज। सो फिजिकल एक्टिविटी, सो ये हमेशा मैंने एम्फसाइज किया है गाइस कि जब भी आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक मतलब आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट पे आपको काम करना ज़रूरी है। जब ये बॉडी को होलिस्टिक अप्रोच मिलता है ना, तो हम किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं, या अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो हम उसको बैक भी, रिवर्स भी कर सकते हैं। हम एक हेल्दियर लाइफ
जी सकते हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लें। रियलिस्टिक गोल्स सेट करना जैसे कि बहुत जरूरी, जैसे मैंने कहा कि कई लोग चाहते हैं कि मेरा एक हफ्ते में ना 10 kg वेट लॉस हो जाए, या एक महीने में मेरा 10-15 kg वेट लॉस हो जाए, विच इज नॉट रियलिस्टिक, विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो ग्रेजुअल वेट लॉस, रिकमेंडेड वेट लॉस यही होता है 0.5 से 1 kg इन अ वीक। सेल्फ मॉनिटर करते रहें, अपने फूड को ट्रैक करें कि ओके अब शाम हो गई तो अब मुझे पता है कि मैंने 2 सर्विंग्स ऑलरेडी सीरियल्स की ले ली हैं। अब मेरे पास कितना स्कोप है, 1 से 2 सर्विंग्स का ही स्कोप है। मैंने प्रोटीन कितना लिया है, ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन इन ईच ऑफ योर मील्स। मतलब आप जितना प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करेंगे ना, आपकी सटाइटी अच्छी रहेगी, आप फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे। राइट, आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन फाइबर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप पोहा ले रहे हैं तो साथ में आप बॉइल्ड चना लीजिए, या फिर एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स फ्रॉम नट्स। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट होगा ना, आप ये चेंज करके देखिए, आप एक हफ्ता आप ऐसे करके देखिए, आपको बहुत बहुत अपने एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस फील होगा। राइट, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स अगर पुअर स्लीप है या स्ट्रेस बहुत है तो हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो सकता है। हॉर्मोन्स का अगर डिसबैलेंस होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी फैट अक्यूमुलेट ज़्यादा करेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो हम ऑफ कोर्स वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ओके, जो यूसाना की प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं, अलोंग विद गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रीमील, हेपासिल और फाइबर जी। सो न्यूट्रीमील क्या करता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरऑल कैलोरी को रिड्यूस करना ज़रूरी है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को कम करना नहीं नहीं करना चाहिए। राइट, सो न्यूट्री मील इज़ अ मील रिप्लेसमेंट। आप 1 से 2 मील्स रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि ओवरऑल आपको कैलोरीज कम मिलती हैं, जैसे 235 किलो कैलोरीज मिलती हैं। अगर आप एक नॉर्मल मील लेते हैं तो 500, 600, 700, 800 किलो कैलोरीज भी हो जाती हैं, डिपेंडिंग आप क्या इंक्लूड कर रहे हो। राइट, जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमें कैलोरीज कम करना है, पोर्शन कम करते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको कैलोरी तो कम मिल रही है, जो कि आपको कैलोरी रिड्यूस करनी है, बट आपको न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपको प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, वे प्रोटीन है विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी लीन प्रोटीन, फाइबर 8 ग्राम्स है, 24 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, और लो ग्लाइसीमिक फॉर्मूला है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाता। राइट, और आपको ये सस्टेन्ड लॉन्गर टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप एनर्जेटिक ज़्यादा टाइम तक फील करेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल जो वेट लॉस जर्नी है उसमें सपोर्ट करता है। ओके, सो हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेट मैनेजमेंट में, हाई इन प्रोटीन है, लोअर कैलोरीज हैं, फाइबर बहुत है, और वेट लॉस जो ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मील रिप्लेसमेंट्स हैं, मार्केट में भी हैं, और ये देखा गया है कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट्स अगर आप लेते हैं वेट लॉस जर्नी में, तो आपका वेट लॉस होने में मदद होती है। सो इट्स नॉट ऑन न्यूट्री मील, बट इट्स ऑन स्पेसिफिक। मतलब जनरली अगर ये स्टडीज़ बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट्स लेते हैं तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है, आपके वेट लॉस जर्नी में ये सपोर्ट करते हैं। फाइबर जी क्या करता है? ऑफ कोर्स इसमें फाइबर है, बहुत अच्छे फाइबर्स हैं, जाइलम हस्क है, फॉस है, इन्यूलिन है। सो जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो आपकी फाइबर, जब भी हम वेट लॉस डाइट्स बनाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि उस डाइट में हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो, ताकि आपको सटाइटी मिले, फीलिंग ऑफ फुलनेस हो, और आप ये जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं ना, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इवन आपके ये गुड बैक्टीरिया का फूड है।
अगर आपका गट अच्छा है ना, तो आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, आपकी हेल्थ, आपका वेट लॉस होने में बहुत मदद मिलती है। सो अगर आप न्यूट्री मील ले रहे हैं तो प्लीज़ फाइबर जी नहीं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी बहुत फाइबर है, तो आपका ओवर भी फाइबर नहीं होना चाहिए। अगर आप न्यूट्री मील नहीं ले रहे हैं तो आप फाइबर जी इंक्लूड कर सकते हैं एज अ स्नैक। आप कभी भी ले सकते हैं जब भी आपको सूट हो। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप मिड मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर डिनर से 45 मिनट्स पहले ले सकते हैं। बहुत ही एवरी ये डिपेंड करता है कि किसको कैसे कैसे सूट कर रहा है। ऑलराइट, ओके। सो फाइबर कैसे आपको हेल्थ में, ओवरऑल हेल्थ में कैसे करता है? वेट मैनेजमेंट करता है, आपकी एपेटाइट, ब्लड शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल को रिडक्शन। जो फाइबर है ना, फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को और जो फैट्स है उनको बाइंड कर लेता है। इवन शुगर, जो एक्सेस ग्लूकोज है ना, उसको बाइंड कर लेता है, और वो ब्लड पे रिलीज धीरे धीरे होता है, और जब तक वो होता है इतना बढ़ने ही नहीं देता, वो पास ऑन कर जाता है। सो दैट इज वाई बावल रेगुलर और बावल रेगुलरिटी भी होगा आपकी स्टूल पास होने में। अगर आपका रेगुलर बावल मूवमेंट है, आपका गट अच्छा होगा, गट का माइक्रोबायोम अच्छा होगा, सो ओवरऑल आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। हेपासिल क्या करता है? हेपासिल में बेसिकली इट्स एन इंटेलिजेंस डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है। इसमें मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे मिल्थिजिल है, एनएसी है, अल्फा लिपोइक एसिड है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है। ये बेसिकली क्या करता है? आपके लिवर, नॉर्मल लिवर फंक्शन को। सो लिवर का काम क्या है? कि आपके जो एक्सेस फैट है या फैट मेटाबॉलिज्म को लिवर हेल्प करता है, राइट? लिवर का काम क्या है? वन ऑफ द फंक्शंस क्या है? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना, फैट मेटाबॉलिज्म करना। सो अगर आपका लिवर अच्छा है, हेल्दी है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो आपकी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है, राइट? आपका नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को ये सारे जो डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये हेल्प करता है। सो आपका लिवर क्या है? लिवर आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है, राइट? अगर आपकी बॉडी में यू आर डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, तो ऑफ कोर्स आपके वेट मैनेजमेंट जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ कोर्स, आपके सेल अगर हेल्दी हैं, सेल अगर अपना फंक्शन नॉर्मल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, राइट? सो लिवर का रोल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला, लिवर का क्या है? फैट बर्निंग ऑर्गन है, फैट मेटाबॉलिज्म। एक्सेसिव फैट जो है वो हमारी बॉडी से बाइल के थ्रू वो पंप आउट करता है। लिवर जो है अगर वो डैमेज हो जाता है तो टॉक्सिन्स जो हैं, वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्सेसिव फैट अगर बिल्डअप होगा तो ऑफ कोर्स वो ब्लड वेसल्स में धीरे 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 अक्यूमुलेट होने लगेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं। सो इट्स बेसिकली, लिवर इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन, और इसको हेल्दी रखना, इट्स नॉट आप ओवरऑल डाइट से, एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को नेचुरली अगर आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, सो इसका जो है लिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट मैनेजमेंट में। ओके, सो लिवर क्या करता है ये मैं आपको दिखाती हूँ, हाउ यू। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वेट मैनेजमेंट का जो सेशन है वो समझ में आया, एंड नाउ आई कैन टेक अप द क्वेश्चंस। ओके, दास जी कह रहे हैं कि यू आर हैविंग न्यूट्री मील एंड फाइबर जी। सो आप प्लीज़ ये ज़रूर, अगर आपको एक्स्ट्रा फाइबर से प्रॉब्लम नहीं हो रही है देन दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा फाइबर, बिकॉज आप न्यूट्री मील भी ले रहे हैं, फाइबर जी भी ले रहे हैं, तो देन टेक आइदर ऑफ देम। हाँ जी, मैं शेयर कर सकती हूँ। ओके, Any other questions, please? Any tips for weight gain? So weight gain के लिए भी हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना ज़रूरी है, कैलोरीज आपको नॉर्मल लेनी है,
मतलब आप अच्छे न्यूट्रिएंट एनर्जी डेंस फूड्स लीजिए वेट गेन के लिए, जैसे आप नट्स लीजिए, बनानास, मिल्क शेक्स ले सकते हैं, आप रेजिन्स लीजिए, डेट्स लीजिए। हेल्दी नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत तला फला फ्राइड, ऐसा नहीं है। फॉर वेट गेन ऑल्सो यू नीड टू हैव अ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, और एक्सरसाइज करना भी वेट गेन जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, गुड हेल्दी फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट टाइमिंग, एक्चुअली देखिए फाइबर जी का कोई एग्जैक्ट टाइमिंग होता है 45 मिनट्स बिफोर एनी मील। आप ब्रेकफास्ट के टाइम भी ले सकते हैं, आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग अराउंड 4 to 5 PM भी ले सकते हैं, डिनर से 45 मिनट्स पहले भी ले सकते हैं, जैसे आपको सूट कर रहा है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग हैं जिनको पीपल हैव कम टू मी कि मुझे तो मॉर्निंग में सूट होता है, मुझे इवनिंग में सूट होता है, मुझे डिनर के बाद भी सूट होता है। सो इट्स एनी टाइम। फाइबर जी इज जस्ट नेचुरल फाइबर, यू कैन कंज्यूम इट एनी टाइम, आइडियली 45 मिनट्स बिफोर द मील। दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, आप ऑल्टरनेट डेज ले रहे हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। Anything else after 1 hour of any breakfast or meal? ओके, आप ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हैं वो भी ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर आप 1-2 घंटे के बाद ले रहे हैं एज अ मिड मील, दैट्स ऑल्सो गुड, रिफ्रेशिंग भी है, इट्स फिलिंग ऑल्सो, फाइबर जी, दैट्स ऑल्सो गुड। ओके, आई थिंक और तो क्वेश्चंस आई थिंक ओके। अच्छा, आपने प्रोकोसा के बारे में पूछा है ओम जी। सो यस, यू कैन स्प्लिट प्रोकोसा, बट नाइट में सी जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं ना, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, जब हमारी बॉडी एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म हाई है, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। सो ड्यूरिंग द डे टिल इवनिंग आप ट्राई करें कि सप्लीमेंट्स आप सारे जो आप ले रहे हैं वो कंज्यूम कर लें, एक्सेप्ट न्यूट्री मील या फाइबर जी। बट ऑल अदर vitamins, मिनरल्स या हर्बल सप्लीमेंट्स जो हैं, that you should take during this. So one you can take it with breakfast, one with maybe lunch, या फिर evening meal के साथ आप ले सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट्स आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं डोसेज में, एनीथिंग। जैसे कई लोग फाइबर जी भी स्प्लिट करते हैं, जैसे कि आप हाफ स्कूप आपने मॉर्निंग लिया, हाफ शाम को लिया, या फिर आप कोई भी जिनके 2 टैबलेट्स हैं या 2 वैसे हैं, तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, दास जी की हाइट 5'4" है एंड वेट इज 62-65। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपका वेट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट ट्राई टू मेंटेन इट। आप अपना वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज़रूर चेक करें, वेस्ट टू हिप रेशियो, एंड ऑल्सो मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज अभी भी आपको चाहिए, राइट? हेल्दी डाइट आपको अभी भी चाहिए। सो इट्स नॉट दैट कि आपका वेट सही रेंज में है तो आपको ये सारे पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखना है। If your weight is normal, you are leading a good, healthy lifestyle, exercising regularly, आप अपनी nutrient deficiencies पे work कर रहे हैं, protein intake अच्छा ले रहे हैं, then of course you are leading a very very good lifestyle. नो नो नो, फाइबर जी इज नॉट ओनली फॉर कॉन्स्टिपेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आप कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है आप उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि वो 2 से 3 लीटर पानी भी लें दिन में, और एक्सरसाइज भी करें। सिर्फ फाइबर जी से नहीं होता है, राइट? फाइबर along with good water intake and regular exercise is very important. Overall healthy diet is important for relieving constipation, राइट? सो फाइबर जी में ऐसे फाइबर्स भी हैं जो आपके वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर। जिनको डायबिटीज है होती है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, जिनके फैटी लिवर grade 1 है, हर कंडीशन में फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर इज फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, सो इट डिपेंड्स अजेश जी कि और क्या उनका इश्यूज हैं।
सो हेपासिल कैन बी टेकन, अगर उनको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो फाइबर जी ले सकते हैं. गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक. ओवरऑल डाइट का बहुत ध्यान देना है. गॉल ब्लैडर जिनका रिमूव होता है उनको बहुत ज़्यादा फैटी फूड, फ्राइड फूड, बाहर का फूड नहीं खाना है जो डाइजेस्ट होने में इश्यूज होते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. और ओवरऑल आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं. टाइम पे आपको नाश्ता करना है, अर्ली डिनर करना है, ताकि आपका ओवरऑल डाइजेशन ठीक रहे. सो एनीथिंग, इफ यू वांट टू रिलीव फ्रॉम समथिंग, होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा नहीं है, दीज आर नॉट मेडिसिन्स, दीज आर सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंटिंग योर डाइट, सप्लीमेंटिंग योर ओवरऑल हेल्थ. सो ये बहुत वेरी गुड. आप योगा करते हैं, दैट्स वेरी 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 गुड. अपनी डाइट का भी ध्यान लें. सप्लीमेंट्स आपके सपोर्ट करते हैं आपको, यू नो, दे सपोर्ट योर हेल्थ, दे सपोर्ट योर गुड हेल्थ, दे आर अ पार्ट ऑफ योर होलिस्टिक अप्रोच. आई थिंक मेजरली मैंने क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने ये ज्वाइन किया. एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, राइट. अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे, आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से प्रिवेंट हो सकते हैं. आप हेल्दी लाइफस्टाइल, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं, राइट. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच देवराज जी.